हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर आया है। और इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को लेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से, और उसको हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो होंगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाए जाएंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें हम हर एक बारीकी पे प्रकाश डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और इन क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आपको पता है, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर, our environment, class 10 science, CBSE NCERT here. The next question arrive here. What is a food chain and food web? You know that there is a very explanation here. Food chain and food web here. The process of eating autotrophs by the herbivorous is began eating by the other animal is considered as a food chain. You know that is important. The process of eating autotroph by the herbivorous is began eaten by the other animals is considered as a food chain. You know that the show of your screen, there is the most important for here a food chain. There is the here a grass is the take of the light of the sun, and grasshopper eating to the grass, and frog eating to the grasshopper, and snake is eating for the frog, and the eagle eating for the snake, and the eagle is decomposed here on the soil, and this processing is growth of other. There is a food chain here that's important for your screen. It is the activities are producer of relationship between the organism that eat the proceedings one and is eaten by the succeedings one. Transfer energy and the material as flow through the each other is ecosystem. Here energy is neither to create nor a destroyer. It's a flow from one level to other. Through the plant to the animals is a leaf level. That's an important point here. There is energy flow here. There are energy neither we create nor we destroy. It's a flow from level to level through the plant to the animal level. And here component of food chain is an important point here. The various component of food chain include here plants, herbivorous, carnivorous, decomposer, and each of these face a different trophic level. That's important point for the exam view here. The next here is important point arrive here, the food web. That's important is the food web here. There are food web definition here, interconnected food chain from a food web. That's important here, interconnected food chain from a food web. That's important definition here. You know that there is an analysis of picture. That's important. There is a show of food web here. The food web is starting for the producer. Producer has here is a berry also. That is here a berry eaten by the butterfly, ladybirds, and red robin. That's important.
and there is other is eaten here. Dragonfly is eaten to the ladybird, and the other is a butterfly eaten to the frog, and that's eaten by the snake, and snake there is eaten here a eagle. That is interconnected for the each other. There is a food web, and otherwise the producer of here a grass and eaten by to the rabbit and grasshopper, but grasshopper eaten by to frog, and frog there is eaten a snake, and that is a food web here. And other side is a rat here eaten to the others, and there's a rabbit eaten to the fox. You know that is the interlinking for the each other. There is a one animal eaten to the many types of animal. That is the food web here. Food web determined to the how animal and plants are interconnected by different paths. It's when to the numerous food chain is connected to from some sort of network. That a network is a term as a food web. That's important. It is then to the numerous food chain connect to the form some sort of network. That a network is termed as a food web. Organism on their food web have one thing to the common, which is the requirement of energy to the carry out further activities. That's in common here. That is energy is a common. There is a energy is common for all organism because there are further activities. Food web are not a linear at all, and they are interlocking, and they do not operate is isolation. That's important point here. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारा पर्यावरण, क्लास 10वीं साइंस टेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी प्रौद्योगिक विज्ञान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी सीबीएसई पे आधारित। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य वेव। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से यहाँ रहता है कि खाद्य श्रृंखला और वेव में क्या अंतर हो सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा तो ये अंतर को भी आपको समझा देगा। देखा जाए तो शाकाहारी जीवों द्वारा स्वयं पोषी और अन्य जानवरों द्वारा खाए जाने की प्रक्रिया को हम खाद्य श्रृंखला कह सकते हैं, यानी शाकाहारी जीवों द्वारा स्वयं पोषी और अन्य जानवरों द्वारा खाए जाने की प्रक्रिया को श्रृंखला को हम जो है यहाँ पर खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और इस बात को अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, चित्रों में देखें, तो ये आपको जो है क्लियर कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जीव कैसे एक चक्र बना रहे हैं। कहते हैं पेड़ पौधे जो है सनलाइट से अपना भोजन बनाते हैं, और ये जो है ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही विनाश कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा जो है पेड़ पौधे लेते हैं और पेड़ पौधा अपना ग्रोथ करते हैं। और पेड़ पौधे खाने वाले आप देख सकते हो ग्रास ऑपर है, और ग्रास ऑपर खाने वाले यहाँ पर फ्रॉग आ जाता है, और फ्रॉग जो है फ्रॉग को स्नेक खा रहा है और स्नेक को ईगल खा रहा है। अब सोचिएगा कोई ईगल को खाने वाला कोई नहीं है। कहते हैं जब ईगल जो है मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो मिट्टी में चला जाता है, और मिट्टी में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज हो जाने के बाद फिर पेड़ पौधे जो है उसका न्यूट्रिशन अपने ग्रोथ में लगाता है। यानी देखा जाए तो ये खाद्य श्रृंखला बनाती है, यानी देखा जाए प्राकृतिक हमें जितना देती है वैसे ही हमें हमसे ले लेती है। ये खाद्य श्रृंखला आपको ये बात को समझा देगा कि जो जीव जहाँ से शुरू हुआ है, जिससे वो पोषण प्राप्त कर रहा है, फिर वही पोषण जो है चला जाएगा। यहाँ पर कोई भी शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि सबने जो है एक दूसरे का आहार बनते हैं, तो ये खाद्य श्रृंखला कहलाएगा। अगर देखा जाए आगे तो यह उन जीवों के बीच संबंध की गतिविधियों की प्रक्रिया है जो पहले वाले को खाते हैं और अगले वाले को खाते हैं, यानी एक दूसरे पर ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एक पहले को खाता है फिर दूसरा उसको खाता है। ऊर्जा के सामग्री की परिस्थिति तंत्र में एक दूसरे के माध्यम से प्रभावित करते हुए स्थानांतरित करते हैं। यह ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। यहाँ पौधों के माध्यम से जानवरों के स्तर पर एक स्तर से दूसरे स्तर पर प्रभावित होती है। यानी यहाँ पर साफ शब्दों में बात कहा जा सकता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न की जा सकती है, न इसको नष्ट की जा सकती है। इसको सिर्फ एक स्तर से दूसरे स्तर पर जो है स्थानांतरित होती है, प्रभावित होती है। तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाई गई है। अगर हम खाद्य श्रृंखला के घटक की बात करें तो खाद्य श्रृंखला के
किस घटक में शामिल होते हैं? पौधे हो सकते हैं, शाकाहारी हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं, और उसके उपरांत जो होता है अब घटक भी सम्मिलित होते हैं। इसमें से प्रत्येक की विभिन्न पोषक स्तर रखा गया है और इनका अपना अपना एक स्ट्रक्चर है, लेवल है। तो एग्जाम व्यू से ये पिरामिड के रूप में भी आ सकता है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी आता है, यानी पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। तो इसको आप पिरामिड के रूप में भी देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में पिरामिड के रूप में भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यदि अगले क्वेश्चन पर हम बात करें तो खाद्य जाल। खाद्य जाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखला एक खाद्य जाल बनाती है, यानी इंटरकनेक्टेड। इंटर यानी परस्पर जुड़ी हुई। जुड़ी होने का मतलब होता है कि एक चीज़ को खाने वाले कई चीज़ हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर एक बेरी का एग्जाम्पल दिया गया है, इस चित्र से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो। यहाँ एक चित्र आपको नज़र आ रहा है, बेरी खाने वाले देखिए बटरफ्लाई भी है, लेडी बर्ड भी है, और इवन कि रेड रेबिन भी है। तो देखा जाए तो ये को खाने वाले कई हैं। तो ये परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखला की एक जाल है, जैसे इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। यहाँ पर अगर हम पहले डायग्राम के अंतर्गत देखें तो बेरी है, बेरी को खाने वाले बटरफ्लाई है, और इवन बटरफ्लाई को खाने वाले फ्रॉग है। दूसरी तरफ देखें तो जो लेडी बर्ड है वो बेरी खा रहा है और उसको खाएगा फ्रॉग। इवन देखा जाए तो बेरी खाने वाला यहाँ पर रेड रेबिन भी है, लेकिन इन सब को खाने वाले भी कोई है, ईगल है। ये तो साफ हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें प्रोड्यूसर में देखें तो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन ये स्वयं पोषी कहलाते हैं। लेकिन देखा जाए तो रैबिट जो है पेड़ पौधों को खाते हैं, इवन की ग्रास हॉपर भी खाता है। तो ये जो है दूसरे खाने वाले स्नेक आ जाते हैं, फ्रॉग आ जाते हैं और ईगल पे ही पहुँचता है। और रैबिट को खाने वाले यहाँ पर फॉक्स भी हो सकते हैं, रैट को खाने वाले फॉक्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक चीज़ को खाने वाले कई जीव हो सकते हैं, तो इसे हम वेव कहते हैं। आपने देखा होगा कि मकड़ी की जाली जो होती है आड़ी तिरछी होती है, जिसमें एक लाइन से नहीं बनाई जाती। फूड चेन का मतलब होता है कि एक लाइन चले, लेकिन फूड वेव का मतलब होता है कि इसमें कोई जीव किसी को भी खा सकता है और ये काफ़ी आड़ी तिरछी होती है। तो इसे हम जो है खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य वेव यह निर्धारित करती है कि जानवर और पौधे अलग अलग रास्ते में कैसे जुड़े हुए हैं, और यह तब होता है जब कई खाद्य श्रृंखलाएं किसी प्रकार का नेटवर्क बनाने से के लिए जुड़ी हुई होती है, और उस नेटवर्क को जो है फूड वेव कहा जाता है, यानी एक दूसरे से ये जुड़ी हुई होती है। तो इसे ही हम फूड वेव का नाम दे सकते हैं। खाद्य जाल पर जीवों में एक चीज़ सामान्य होती है, जो आई गतिविधियों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी खाद्य जाल में एक चीज़ महत्वपूर्ण होती है जो सभी जीवों से जुड़ी होती है, वो है ऊर्जा का स्तर। कहते हैं खाद्य जाल बिल्कुल भी रैखिक नहीं होती है। रैखिक का मतलब होता है कि एक लाइन से नहीं चलती है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और वे अलगवाद में काम नहीं करते, यानी अलग जो है ये कार्यरत नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है यहाँ पर फूड चेन और फूड वेब, जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्ज़ाम व्यू से, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आगे क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। जितना हो सके शेयर कीजिए, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। देखा जाए दोस्तों एक और बात भी महत्वपूर्ण रहता है, कभी वीडियो देखिए तो पूरा देखिए, स्किप करके ना देखिए, आगे वीडियो को बढ़ा के ना देखिए, क्योंकि कई बात जो है पीछे इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो शायद वो बातें पीछे रह जाएगी और वो आपको समझ में नहीं आएगा। और आपको तो पता ही होगा कि साइंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं और काफ़ी पॉइंट व्यू होते हैं, इसलिए हर एक बात को समझना आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए हर बात को समझिए ध्यान से, ठीक है। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो जितना हो सके जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिएगा, तभी जो है आने वाला समय में और भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। और आपको पता ही है कि तिरपान स्टडी सेंटर 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, समझ लीजिएगा।